Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to Unprime at 9, only on T2I News. This is your host, Mr. Swami, प्यार से known as Shut Up Swami. The topic at hand today is the rising fuel price that has led to a lot of protests around the country by the common. Now, the suddenness of the fuel, the unexpected nature of the fuel, the unaffordability of the fuel, the unexpectability of the fuel hike is what I would have said. But that has not been the case in India. If you see the fuel prices from September 2020, in September 2020 in Delhi, the fuel price was at 82 rupees. In January, it went to 86, and in Delhi today, it is at 91 rupees. In Mumbai, it was at 88 in September, at 92 in January, and it's 97 today. In Ganganagar, it was at 91 in September, 95 in January, and 100 today. So there has been a considerable amount of increase. I accept that, but it has been a gradual increase. So no need to crib about the fuel price. With inflation, it has gone. But we have different views coming from different parts of the country today. So let me introduce you to my panelists. First of all, सर मैं दिख रहा हूँ सर हाँ सर हाँ मैं दिख रहा कमलेश हूँ जी, हाँ कमलेश जी, एक मिनट रुक जाइए. Yes. So first up, we have Kangal Kamlesh. He belongs राम to राम a सर category. राम कमलेश. अभी रुकिए, मैं बताऊंगा तभी बोल. He is the poor section of India. Then we have Mr. Mango Man or Aam Aadmi. And last but not the least, our very own, our favorite, Sushma ji. Sushma ji is back on earth. Pai lagu Sushma ji. Welcome to my show. Let's get to the debate, ladies and gentlemen. The first question is, I would like to know all of your opinion. मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ इस फ्यूल हाइक को लेके. पहले I would go to Sushma ji, then I would go to Aam Aadmi ji, and then I will go to Kamlesh ji. Yes, Sushma ji, the floor is yours. हम हम सबको तो इतना खुश होना चाहिए. पेट्रोल ने फाइनली उसकी शतक कंप्लीट कर ली है ना. जस्ट लाइक व्हेन वी वर हैप्पी व्हेन सचिन डिड इट. आई थिंक इट्स ओके. होते रहता है थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर मी. नो. Typical rich person talking here. Yes, Aam Aadmi ji, what is your opinion? मैं कहना चाहूँगा कि मैं सुषमा जी की बात से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं. पेट्रोल के जैसे ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जैसे ही इजाफा आया, मेरा तो सारा काम ही, मेरा तो सारा बजट ही बिगड़ चुका है 1 महीने का. ना ही मैं कुछ खा पाता हूँ, ना ही मैं कहीं जा पाता हूँ. ठीक है, पॉइंट टेकन आम आदमी जी, थैंक यू. कमलेश जी, आपको क्या लगता है? साहब मैं तो पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब भी 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाऊंगा. मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता साहब. और इलेक्शन आने वाले हैं तो जब तक तो कुछ आ ही जाएगा साहब घर पे. सही बात. यस यस, we have typical opinions from the richer section of the society, the middle class of the society, and the poor section of the society. Very typical, very ordinary opinions, very straightforward opinions. I like these thoughts. Very good. Keep it up, my panelists. I am proud of it. मुझे नाज है कि आप मेरे पैनलिस्ट. आगे बढ़ते हुए, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, द मेन क्वेश्चन. ये जो पहले की सरकार थी और आज की सरकार है, इस पे जो कंपैरिजन होता है, जो दोनों सरकार की एक लड़ाई चलती रहती है कि हमारे टाइम पे तो इतना ही पेट्रोल था और तुम्हारे टाइम पे इतना पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया. उस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ. आप सरकार को जिम्मेदार समझते हैं? क्या आप सरकार के पीछे भागेंगे कि सरकार ने ये किया है? यस, सुषमा जी अगेन. जी, मैं सरकार को नहीं, समय को जिम्मेदार समझती हूँ. देखिए, जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी, मेरे कॉलेज के दिनों में 5 रुपए का लेस का पैकेट आता था. उसमें अभी के 10 रुपए से ज्यादा नहीं जाता था. हवा कम आती थी. हवा अब सस्ती हो गई होगी इसलिए ज्यादा डालते हैं. तो वो वाली चीज है ना, जब उनकी सरकार थी उस समय पे समय भी तो अलग था. अब इस समय पे समय इस समय वाला है, तो इसीलिए समय के हिसाब से पेट्रोल बढ़ेगा. समय के हिसाब से तो सभी बढ़ते हैं. ये देखिए, आम आदमी कह रहे हैं खाने का पैसा नहीं है, पर लगता तो नहीं है. हमारे पास होता है पर हमें देख के लगता है क्या. That I like this point. समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है. वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस. थैंक यू सुषमा जी, वेरी गुड. यस, आम आदमी जी ऑलरेडी सर हिला रहे हैं. क्या हुआ आम आदमी? मैं इनकी बात से वापस सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि
जब एक आदमी जिसे हैंड टू माउथ इनकम बोलते हैं, जो जो कमाता है उसी उतने ही दिन के पैसे से खाता है। मिडिल क्लास आदमी की स्ट्रगल अलग तरीके की होती है। वो इनकी तरह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो और वो उसके पास अगर वो काम ना भी करे और महंगाई बढ़ जाए तो भी वो खा सके बिना किसी फिक्र के। हमें बहुत तरह की चिंताएं होती हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम देखें तो उस टाइम, आज के टाइम पर अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं है इतने, पर सिर्फ भारत में ही क्यों? तो इसका दोष तो या तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए या फिर इसका दोष सरकार पे ही जाना चाहिए, बिकॉज देखिए आम आदमी जी, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब शेर को पाला है तो शेर का खर्चा तो उठाना पड़ेगा, है ना। मेंटेनेंस वाली बात हो जाती है। थोड़ा आपके पीछे सैंट्रो रखिए, आप मेंटेनेंस कराएंगे तो आपकी सैंट्रो बीएमडब्ल्यू थोड़ी बन जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेंट्रो, आम आदमी जी, ये आपने नई गाड़ी खरीदी है, सेकंड हैंड गाड़ी है मेरी। पर कब खरीदी आपने? पिछले साल। पिछले साल खरीदी। तब आपको पेट्रोल के प्राइसेस सही लग रहे थे, जी। और आज जब सिर्फ 10 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो आपको दिक्कत हो रही है। मैं मानता हूँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, यस दिक्कत हो रही है, ठीक है, दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मेरा तो पूरा बजट हिल गया, मैं तो हैंड टू माउथ कमाने वाला हूँ, तो अगर आप हैंड टू माउथ कमाने वाले इंसान हो, जो दिन का कमाते हो और दिन का खाते हो, तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आप सेंट्रो गाड़ी खरीद सके? सेकेंड हैंड तो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद सके, इतने पैसे आए कहाँ से जब आप हैंड टू माउथ पे पैसे कमाते हो? इंडिया वांट्स टू नो। जी देखिए, एक सेविंग नाम की चीज़ होती है। जब से मैं काम करने लगा हूँ, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी जो कमाई है उसका हिस्सा सेव करता था और उससे मैंने गाड़ी खरीदी, क्योंकि ये एक ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है आज के समय पर। जैसे समय की बात सुषमा जी कर रही थी, और हैंड टू माउथ अभी इनकम में से सेविंग निकलनी बंद हो गई है, बिकॉज जितनी मैं सेविंग करता था, अब वो सेविंग तो मेरी महंगाई के कारण में बचती ही नहीं है। ठीक है कमलेश जी, नाउ इट्स योर टर्न। आप बताइए, क्या लगता है आपको, पहले की सरकार अच्छी थी, ये सरकार अच्छी है, आने वाली सरकार अच्छी होगी, क्या है आपकी राय? जी साहब, हम पुरानी सरकार में एटलस की साइकिल चलाते थे, अब स्प्लेंडर की बाइक चलाते हैं साहब। तो सरकार तो अच्छी है साहब, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा, ये प्रगति हो रही है देश, ये विकास हो रहा है देश का, जहाँ पे एटलास की साइकिल से हीरो होंडा स्प्लेंडर पे आ गए हैं लोग। बहुत अच्छी बात बोली आपने कमलेश जी, वेरी गुड। इसमें भी आम आदमी जी को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आम आदमी जी के पास जाऊं उसके पहले आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट। आम आदमी जी ने अपनी स्पीच में कहा, अपने पार्ट में कहा, भारत की सरकार को कुछ हद तक दोषी मान सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बोला है। मैं भी ये मानता हूं कि भारत की सरकार को और अपने जो राज्य की सरकार है, राष्ट्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज व्हाट आई मीन टू से, उनका जो टैक्स है वो अगर वो कम कर दे तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है, ये एक चीज है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो पूरे पूरे विश्व में जो ये आम आदमी जी ने बात की, वो आम आदमी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर जगह पे पेट्रोल की प्राइस लगभग लगभग मोटा मोटा सेम ही है। बट भारत में जहाँ पर इतनी गरीबी है देश के अंदर, और जहाँ पर जो हमारे जो जो सरकार की जो इकोनॉमी, हमारे देश की जो इकोनॉमी चल रही है, उसके मुताबिक हमारी सरकार इतनी कैपेबल है कि वो ये टैक्स को घटा सके और हमारे जो आम आदमी के बारे में सोचकर जो पेट्रोल के दाम है उसे घटा सके। और मैं जैसे कि क्या नाम है इनका, ये जो कमलेश मुंह जी, माइक पे हाथ रखकर, हाँ जी, कमलेश हाँ जी, कमलेश जी। हाँ, ये कमलेश जी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ये साइकिल से बाइक पे आ गए हैं, तो मैं भी बताना चाहूँगा, ये मेरी गाड़ी जो है ये मिट्टी से भर चुकी है। मैं इसे साफ नहीं कर पाया हूँ पिछले, जब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्योंकि मैं इसे चला ही नहीं पाता हूँ। मैं अब कुछ दिनों से पिछले मैं साइकिल पर जाने लगा हूँ ऑफिस, और मैं जब तक ऑफिस आपको पहुँचता हूँ अच्छा होगा, हाँ, एक आध महीने में मेरा आपको एकदम फर्क दिखेगा मे- मेरा मैंगो मेरा मैंगो। पूरा बदन जो है उस पे स्वेट पैचेस आ जाते हैं, और मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, मेरी नौकरी पर भी इसका असर आ रहा है। और उसके बारे में क्या कहेंगे आप कमलेश जी? गरीब आदमी तो साइकिल से बाइक पे आ गया, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो गाड़ी से सीधा साइकिल पे आ गया। साहब वो जो गंदा हो रहा है हम वो साफ करने आ जाएंगे साहब आपके। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है आपको।
साहब एक काम करते हैं साहब, आप हमारी स्प्लेंडर ले लीजिए, हमको सेंट्रो दे दीजिए, क्योंकि सरकार हमको सब्सिडी तो दे ही देती है, तो हम उसको चला लिया करेंगे और आपको साफ करके भी दे देंगे रात तक साहब। These negotiations will be held under closed door. ये Thank you. ये This हम is, see, ladies and ये gentlemen, this is आपको where you should आपको be कितनी watching on Prime सब्सिडी at night. मिलती The है? rawness आपको of खाना India is मिलता है क्या? what you can see here. The rawness of आपको India. खाना Three different आपको sections of खाने पे भी मिलती है क्या सब्सिडी? हाँ साहब, हमारा चावल दाल सब आ जाता है। तो ये जो जिस पैसे जो टैक्स मैं भरता हूँ ये उससे आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई अगर हम देखें कि इनकम जो जाती है मेरी वो पेट्रोल डीजल महंगा है। अगर मैं भिंडी की सब्जी लेने जाऊँ तो 100 रुपये किलो वो बिकती है। अगर मैं पनीर लेने जाऊँ तो 320 रुपये किलो का पनीर बिकता है। और पनीर तो अब हम खा ही नहीं पाते हैं। हमारी आदत जो हमारी हालत है वो सब्जी जो फल हैं, अगर हम सेब लेने जाएं तो वो इतना महंगा। अगर हम प्याज लेने जाएं तो 50 रुपए किलो का प्याज जो पहले एक आम समय। आदमी जी, हमें हमें प्राइसेस पता है, हम भी ये सब चीजें लेते हैं, आप अपना नहीं, पॉइंट बोलिए। आप बताइए, एक लीटर दूध की कीमत बताइए आप। राजू ये राजू है देखिए, नहीं अभी घर पे, वो दूध ही लेने गया हुआ है, ये मैं उसको ये पूछ के आपको देखिए। बताती हूँ। बट साहब बात ये है कि सारी आप हमारी राशन की दुकान से भी ले सकते हैं साहब, वहां से 10-10 12-12 रुपए में हमको मिल जाता है साहब। आप ये आइएगा कभी हमारे घर, ये हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे साहब। ये देखिए एक आम आदमी के देखिए घर मेरा पे नेटवर्क वाईफाई गया। इश्यूज भी हो रहे हैं। इंडिया सी, द नेशन कैन सी कि कितना सफर कर रही है ये जनता, ये आम जनता जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, ये आम जनता। हम बहुत जल्द जुड़ेंगे वापस, होपफुली, आम आदमी जी से। उनका दिन का डेटा खत्म हो गया होगा तो शायद ना भी जुड़ पाए, लेकिन जो भी है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब आपको क्या लगता है कमलेश जी और सुषमा जी, आप मुझे बताइए, तब तक आम आदमी जी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है जी सरकार को क्या करना चाहिए और आम आदमी को और जनता को क्या करना चाहिए इस समस्या एक को मिनट, सरकार 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 या आम आदमी बड़े कर रहे थे जो अभी चले गए हैं, उनसे मुझे एक सवाल पूछना है, वो आने का मैं इंतजार कर रही हूँ। तब तक कमलेश जी आप बोलिए। और जहां तक आपकी बात है स्वामी जी, आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं? सारे कार से आते होंगे या स्कूटी से आते होंगे, तो आ तो रहे हैं ना। 10 रुपए प्राइस बढ़ गई तो आप इनकी 10 रुपए में सैलरी बढ़ाएंगे? उनका कहना, आम आदमी जी का कहना ये था कि 10 रुपए पर मंथ बढ़ाने से उनकी सेविंग्स अस्त व्यस्त हो गई, उनका खाना ऊपर नीचे हो गया, तो आप पर मंथ उनकी 10 रुपए सैलरी बढ़ा देंगे तो उनका बैलेंस हो जाएगा। पर ऐसे चलती हैं क्या चीजें? अब वो 10 रुपए का खर्चा कुछ कम कर दें। इसमें दिक्कत यह है सुषमा जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और ये बहुत बहुत बड़े सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की यही समस्या है कि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो सब लोग कहते हैं कि पेट्रोल के 10 रुपए ही तो बढ़े हैं, मंथली बजट में 10 रुपए बढ़ा दो तो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है ना सुषमा जी। पेट्रोल की वजह से आपके मंडी में सब्जियां आती है, आपके डेयरी में दूध आता है, तो वो सबकी कीमत बढ़ जाती है। तो उसमें आम आदमी को ये दिक्कत होती है कि जिसमें वो कुछ भी नहीं खरीद पाता। जैसे वो आम आदमी कह रहे थे कि भिंडी तो 100 रुपए हो गई है, पनीर 320 रुपए हो गया है। आपके जैसे मुझे भी नहीं पता ये सब, हमारे यहाँ भी कोई कोई ना कोई लेके आ जाता है। तो उसमें पता नहीं चलता कि हाँ, क्या चल रहा है। लेकिन ये आम आदमी जो होते हैं वो हमारी आंख खोल देते हैं आके कि देखिए इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, और वो सब में दिक्कत होती है। लेकिन कमलेश जी, आपको तो सरकार ने सर पे चढ़ा के रखा है। आपको तो साइकिल से स्प्लेंडर पहुंचा दिया, आपको 10 रुपए में गेहूं मिल रहा है, 8 रुपए में चावल मिल रहे हैं। आपकी क्या राय है कमलेश जी? आम आदमी जी वापस जुड़ गए हैं, हम उनके पास तुरंत वापस जाएंगे, लेकिन कमलेश जी उसके पहले आप हमें बताइए आपका क्या राय जी है। साहब, मेरे को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से, वो जो भी कर रही है करती रहे। जो भी इलेक्शन के समय हमें हमारे हमारे पास सब सामान भेजती है, वो दवा दारू, उसके साथ अब बस पेट्रोल भी थोड़ा सा भेज दे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं भाई बहुत महंगा हो गया। हमको तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे जब इलेक्शन आए जब वो भी भेज दीजिएगा, धन्यवाद। वोट तो वहीं जाएगा, हम कुछ भी दबाएं। ओके, controversial remarks on my show. This is my show for you ladies and gentlemen. आम आदमी जी, तो मेरा सवाल ये था, मैंने सुषमा जी को ये पूछा था और कमलेश जी को ये पूछा था कि अब जो ये बढ़ गई है समस्या, जो बढ़ गई है, आम आदमी की सबसे ज्यादा समस्या बढ़ी है। और मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ, मैं आपकी समस्या समझता हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु टॉक्स टू माई ऑडियंस एंड मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज अ मिडिल क्लास ऑडियंस। दे नो मी दैट आई ऑलवेज सपोर्ट देम।
whether they स्वामी are जी, wrong मैं or इस शो right. पे I सबसे respect. बड़ी हूँ वापस इस बार। आम आदमी जी का मुझे थोड़ा डाउट है, ऊपर नीचे हो सकती हूँ मैं, पर फिर भी आम आदमी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। फरवरी के महीने में हम थोड़ा ऑटोमोबाइल में भी रखते हैं, सब जगह से थोड़ा थोड़ा आता है, तो सुजुकी दे रिकॉर्डेड द रिकॉर्ड सेल्स दैट ईयर, दैट मंथ। तो 10 रुपए बढ़ने से लोगों को तो पैसा मिल गया ज्यादा, इतनी गाड़ियां बिक गई। इस ये पे आपको पहली क्या बात लगता है? तो ये सब ये स्कैम जो है, करें आप स्वामी जी नहीं, आप 10 रुपए कहीं स्वामी कम हाँ जी खर्च हाँ, आपने करें। बोलिए बोलिए आप बोलिए। मुझे अपना बजट यस दो, मैं बताती स्वामी हूँ 10 जी रुपए मैं कैसे आपसे निकल बात सकते कर रहा हूँ। सुषमा जी आपका पॉइंट मैं पहुंच चुका है, आपका पॉइंट पहुंच चुका है। अब यस, आम आदमी जी की बारी। स्वामी जी इन्हें कहिए थोड़ी देर चुप रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर हम देखें तो ये बोलती रहती हैं कि मैंने पहले भी देखा है इन्हें बोलते हुए कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी हूँ। तो ये किस मायनों में बड़ी हैं? ये पैसे के मायनों में खुद को ऊंचा दिखाना चाहती हैं या फिर ये नहीं उम्र नहीं के नहीं, लिहाज आप से ट्विस्ट बोल कर रही नहीं रहे हैं? हैं नहीं, बात आम को। आदमी जी, जी आम नहीं, आदमी जी, नहीं नहीं नहीं, ये सुषमा जी को हम बड़ी अच्छी तरह से ये जानते हैं। उनका क्योंकि पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उनके पॉइंट क्योंकि भूल जाइए, उनका पॉइंट भूल जाइए। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैं सवाल पूछता हूँ। मैं तो आपकी समस्या पहचान रहा हूँ, मैं आपको सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि पिछला महीना फरवरी 2021 की फरवरी, जिसमें पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए तक पहुंचे, 100 रुपए को टच किया, उसी महीने में मारुति सुजुकी ब्रांड ने, जो भारत की सबसे अफोर्डेबल कार ब्रांड है, उसने नई गाड़ियों में अपने कुछ मॉडल्स में रिकॉर्ड सेल्स कर दिए हैं, जहां पे उन्होंने 20-20 हजार गाड़ियां बेची है एक ही मॉडल के। ठीक है, तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जब मिडिल क्लास आदमी जो मारुति सुजुकी खरीदता है, वो तो जा जाके गाड़ियां खरीद रहा है, तो उसको तो पेट्रोल के दाम से फर्क ही नहीं जी पड़ा है। तो उस पे आपका क्या? देखिए वो उस तरह के वो जो लोग हैं, हम उनकी अगर समस्या समझे तो वो लोग ऐसे हैं, गाड़ी के बिना नहीं रह सकते। सबके अपने अपने परिवार हैं। सबको अगर किसी को जाना होता है कहीं तो उन्हें जो है वो पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस अब इस्तेमाल करिए, तो आप एनवायरनमेंट जी बचाइए। जी ये किस आपको तरह पता की, है ये कोरोना बिल्कुल कोरोना आप नाम की एक एनवायरमेंटल बीमारी आई फ्रेंडली थी। चीज कर ही नहीं रहे कोरोना हैं। नाम की एक बीमारी आई थी जिसके कारण जो है बीमारी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना जो है वो बहुत ही हानिकारक हो चुका था। इसलिए मिडिल क्लास आदमी को गाड़ी खरीदनी पड़ी है। ओके 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 ओके, जी आई गेट इट, आई गेट इट। ये जी मैं सही। एक और चीज कहना चाहूंगा। मेरे खाने के लिए भी अभी इसलिए दिक्कत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्जी फल महंगा है, लेकिन अगर आप देखें कि एलपीजी की कीमत देखें तो अभी आज के पिछले 3 हफ्तों के अंदर अंदर 100 रुपए से ज्यादा उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। और हम जो है बनाए नहीं, खाए नहीं, कहीं जाए नहीं, तो हम करें तो क्या करें? जाए तो कहाँ जाएं? सही अब सही घर बात पे है, बैठे सही बात है, सही बात है। आम आदमी जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। एंड बिफोर आई गो फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स, वी ओनली हैव 5 minutes लेफ्ट ऑन आवर शो। सो द इशू इज, आम आदमी जी, आपने जो कहा कि आम आदमी को जरूरत पड़ती है अपने परिवार को घुमाने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए उनको उसको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, बट इन द सेम मंथ वेयर द पेट्रोल प्राइसेस टच 100 rupees mark, the record sales that are recorded by a company which is known to be a middle class man's car is a little suspicious. अब हम कमलेश जी के पास जाएंगे। कमलेश जी, आपके आखिरी कुछ रिमार्क्स जो आप कहना चाहेंगे इस शो पे। मुझे तो साहब बस यही कहना है, जब मोटा भाई ने हमको वो फोन दिया था जिससे हम हमारे दोस्त से बात करते हैं, जब हम उनको फोन लगाते थे, जब बच्चन साहब आके बोलते थे कि घर पे बैठो, बाहर मत जाओ, तो फिर ये जो आम आदमी जी हैं वो ये बात की टेंशन क्यों ले रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हो गया था? आप भी घर बैठिए बच्चों के साथ, हम भी देखे हमारे बच्चों के साथ घर पे ही बैठे हैं, आप भी वहीं बैठिए ना। धन्यवाद। सही बात है, कमलेश जी ने आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच जीत लिया। यस, सुषमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्लोजिंग देखिए रिमार्क्स। मैं ये कहूंगी, जी आप अभी वाईफाई कैसे चला रहे हैं? बिजली से। आपका फ्रिज कैसे चलता है? बिजली से। इंडक्शन भी आपके पास होगा, माइक्रोवेव आपके पास होगा, ये सब बिजली से चलता है। तो आप बेस्ट काम करिए ना, आप इलेक्ट्रिक कार ले लो। इतनी महंगी तो आती नहीं है, 35-40 तक आ जाएगी। और अगर आपको थोड़ी सस्ती चाहिए तो 10-15 लाख तक आ जाएगी। इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले लीजिए। सैंट्रो जैसी खड़ी तो नहीं रहेगी, कभी चार्ज करा और चल दिए, हमने भी ली है अभी, बहुत बढ़िया चलती है। मैं आपको डीलर का नंबर भेजूंगी, आप देखिएगा, वो आपके सैंट्रो पे आपको 10-12 ये हजार दिला देगा। देखिए, ये दिस ये इज अ अपने टिपिकल रिच अपने पर्सन इनका टॉकिंग घर अगेन, देखिए। स्टार्टिंग विद अ टिपिकल रिमार्क, एंडिंग आप विद अ हाँ टिपिकल रिमार्क। जी, टिपिकल इनका सुषमा घर जी, देखिए सुषमा जी आप। पाए लागू अगेन। यस, इनका आम आदमी जी। इनका इनका घर देखिए।
ये इन लोग, ये घर देखिए, इन्हें प्रिविलेज क्लास बोलते हैं ऐसे लोगों को। ये प्रिविलेज क्लास है और इन्हें नहीं फर्क पड़ता। ये बातें करेंगी कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट बिल्कुल। को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये इस तरह की बातें करेंगी क्योंकि इनके पास वो पैसा है कि ये वो चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन हमें अभी उधर तक पहुंचना है। लेकिन आज के टाइम पे जो महंगाई है, मैं अब देखता हूँ कि मैं कमलेश जी की जगह बैठा हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर रहूँगा, क्योंकि ना ही मैं उधर जा पा रहा हूँ, ना ही मैं इधर। Yes. So, ladies and gentlemen, आम आदमी जी, मैं एक who comes in सरकार the के middle, लिए एक the सुझाव middle देना class man, चाहूँगा। वो उन्होंने ये मिडिल काफी मिडिल सही मिडिल क्लास काफी मिडिल सही क्लास मिडिल मिडिल में बोलता है हर समय। काफी मैं एक सेकंड मैं आम बोलना आदमी जी, चाहूँगा। आम आदमी जी, हमारे नहीं पास वक्त हमें नहीं है। तो ये जो मिडिल क्लास आदमी की जो समस्याएं है वो आज वापस हाईलाइट होकर हमारे भारत के सामने आई है। भारतीय आम आदमी, द आम आदमी ऑफ इंडिया, द मैंगो मैन एज वी लाइक टू कॉल इट, यस, द आम आदमी प्रो मैक्स, उनकी सारी दिक्कतें उन्होंने आज हमारे शो पे आके बताई है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, व्हाट डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज डन रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट कैन डू फर्दर, एंड डू यू मैं क्या दर्शकों आप से भी 100 अपील रुपए का ही करूँगा पेट्रोल भराते हैं अभी भी, और 100 रुपए का ही पेट्रोल भराते थे पहले भी? वी हैव मैं वेरी लेस दर्शकों टाइम से लेफ्ट, अपील वी विल करूँगा हैव टू एंड द शो हियर। सॉरी आम आदमी मैं जी, आई दर्शकों कांट से लेट यू अपील टॉक। करूँगा कि यस, स्वामी जी के लिए हैशटैग चलाएं, हैशटैग स्वामी जी फॉर द विन। और स्वामी जी, आपका शो ऐसे ही चलता रहे, ये एक आम आदमी की दुआ है। thank you और हम so much, आपके thank you so सपोर्ट much. में We have रहेंगे। very little time, we have only 10 seconds left. Thank you so much ये everyone सुषमा who जी पे just tuned विश्वास into मत my करिएगा, show. ये सिर्फ This is पैसों की my भूखी show, हैं। you are watching Unprime at 9. This is your host, Shut Up Swami. Thank you all my panelists, thank you so much for watching. Please subscribe. और आम आदमी मिल